Hello students, today in this video we will continue our heterotrophic mode of nutrition, as we have already seen that there are four types of heterotrophic mode of nutrition, that is parasitic, saprotrophic, insectivorous and symbiotic. As we have already learnt about the parasitic nutrition, what is parasitic nutrition? The mode of nutrition in which organism obtain nutrients from other organisms body are parasitic mode of nutrition. Let us start the saprotrophic mode of nutrition. Let us understand the saprotrophic mode of nutrition, also known as saprophytic mode of nutrition. In this mode of nutrition, organisms obtain nutrients from dead and decaying matter. It means कि जो organisms होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? Dead और decaying matter से. Dead और decaying matter means वो खाना जो खराब हो चुका है, सड़ चुका है. Rotting or spoiled food is known as dead and decaying matter. Now, how they obtain these nutrients from the dead and decaying matter? They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into the solution. क्या करते हैं वो organisms? वो secrete करते हैं digestive juices किस पे? dead and decaying matter पे and convert into a solution. और किस form में convert कर लेते हैं? solution के form में. And then they get their nutrients from the dead and decaying matter. इस तरीके से वो अपना खाना क्या कर लेते हैं? nutrients ले लेते हैं किससे? dead and decaying matter से. And what are digestive juices? Juices that help to break down the food in different nutrients. वो juices जो क्या करते हैं? food को break down करने में help करते हैं different nutrients में. So this is all about the saprotrophic nutrition. What are the examples of the saprotrophic nutrition? Fungi, mold, few other bacteria, mushroom and bread mold. सबने देखा होगा मशरूम. मशरूम क्या होता है? एक एडिबल फंगाई है जो कहाँ पे ग्रो होती है? डेड एंड डिकेइंग मैटर में. जो सड़ी हुई जगह होती है वहाँ पे, जहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती है, वहाँ पे क्या ग्रो होती है? मशरूम. ओके. नाउ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स विच यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रोफ्स. वो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोफ्स. Fungi can also grow on vegetables like tomato, mango, apple. The fungal spores are generally present in the air. जो fungal spores होते हैं, जो ये organisms हैं, वो हमारे air में क्या रहते हैं? present रहते हैं. When they land on the wet and warm thing, जब ये गीली और गर्म वाली जगह पे बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं? जर्मिनेट और ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी चीज़ों को क्या करने लगते हैं? खराब करने लगते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेने लगते हैं. Next mode of nutrition is insectivorous plants. Have you ever heard about the carnivorous plants? क्या कभी सुना है carnivorous के plants में के बारे में या पढ़ा है? carnivorous plants कौन से plants होते हैं? वो plants जो क्या खाते हैं? insects खाते हैं. Yes, this is exactly the same as insectivorous plants. So, few plants trap insects and digest them. कुछ plants ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? insect trap करते हैं और उनको digest कर लेते हैं अपने अंदर. Look at the pitcher plant and try to understand it. What happens? The pitcher structure, this is the pitcher structure. The pitcher structure is the modified part of the leaf. किसका modified part है ये? leaf का. leaf से ही attach होता है. And apex, the leaf apex forms what? The lid of the pitcher. जो apex होता है वो किसकी तरह work करता है? इसके lid की तरह. Here is the modified structure. So what happens when any insect land in the pitcher? जब भी कोई इंसेक्ट क्या करता है? इस पिक्चर के ऊपर लैंड करता है तो वो इंसेक्ट क्या हो जाता है? ये लिड क्लोज हो जाता है और क्या हो जाता है? इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है. इसके अंदर हेयर्स होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इस इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं? अपने अंदर एंटेंगल कर लेते हैं. एंटेंगल मतलब उलझा लेते हैं. और ये पिक्चर जो है कंटिन्यू सीक्रेट करता है कौन से जूसेस? डाइजेस्टिव जूसेस, जो इसको हेल्प करते हैं किसको? इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में. तो इस तरीके से जो पिक्चर प्लांट होता है वो किसको डाइजेस्ट कर लेता है? इंसेक्ट को. दैट्स वाई दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के. पिक्चर प्लांट जो हम पढ़ चुके हैं, वीनस फ्लाईट्रैप, रफलेशिया एंड एक्सेट्रा. The last mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition, is symbiotic relationship. In this relationship, the relationship in which two organisms are mutually benefited to each other, this relationship is known as symbiotic relationship.
वो रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदे पहुंचाते हैं या अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, शेयर देयर शेल्टर एंड फूड। क्या करते हैं, शेल्टर शेयर करते हैं और फूड भी शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मीन्स टू लिव टुगेदर, जब दो चीजें एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं साथ रह के, तो वही रिलेशनशिप होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप बाय एन एग्जाम्पल। फंगाई एंड रूट्स ऑफ ट्री, जैसे कि पता है कि जो फंगाई होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे रूट्स में ट्री के। तो फंगाई कैसे बेनिफिट कर रही है ट्री को, जो फंगाई है वो क्या कर रही है, टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड प्रोवाइड टू रूट्स। सॉइल से सारे जो वाटर और मिनरल्स हैं उनको क्या कर रही है, ले रही है और कहाँ प्रोवाइड करा रही है, रूट्स में। और रूट्स क्या करेगा, उन वाटर एंड मिनरल्स को ट्री में और प्लांट में कंडक्ट करा देगा। तो और रूट्स क्या कर रहा है, रूट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। रूट प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट किसको, फंगस को। सो रूट एंड फंगस are mutually benefited to each other. So this relationship is known as symbiotic relationship. Second example is lichen. The relationship between the algae and the fungi is known as lichen. लाइकन कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये ट्रीज पे प्रेजेंट रहती है। कैसे प्रेजेंट रहती है, ट्रीज पे हम देखा हो, बार्क ऑफ ट्रीज पे हमने कभी नोटिस किया हो तो ग्रीन और व्हाइट कलर का सब्सटेंस कलेक्ट रहता है, उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, लाइकन। अभी एक दूसरे को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, फंगाई क्या कर रही है, फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर टू द एल्गी। फंगाई प्रोवाइड कर रही है क्या, वाटर एंड शेल्टर, किसको, एल्गी को। और एल्गी क्या कर रही है, जैसे कि एल्गी किस कलर की है, ग्रीन कलर की। हमने एल्गी के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है फंगाई को, एल्गी को क्या करने में, फूड प्रिपेयर करने में। तो जो एल्गी फूड प्रिपेयर कर रही है वो किसको प्रोवाइड करा रही है, फंगाई को। तो ऐसे ही एक दूसरे पे क्या रहते हैं, म्यूचुअली बेनिफिटेड, मतलब एक दूसरे को शेयर करते हैं अपनी चीजें। दैट्स व्हाई लाइकन इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। थर्ड एग्जाम्पल इज लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या प्रेजेंट रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उनके रूट्स में। जैसे कि हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। So, what are leguminous plants? Leguminous plants, gram, pea, मूंग, bean, wheat, rice, these all are leguminous plants. जितने भी हमारे ग्रीन्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, रिच होता है नाइट्रोजन में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब हाउ आर दे बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। प्लांट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है क्या, फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। एंड राइजोबियम can't make its own food, so it taking food from the plant, and rhizobium provide nitrogen in soluble form to the plant. In this way they both are mutually beneficial for each other.